have effect, but in allied science, it is mostly related to diseases. If some diseases are to be helped. Let me tell you very clearly that we have two professions in the schools. One is health profession, another one is allied professions. Allied professions are those professions where you are supporting the diagnosis and the management, like pathologists, radiologists, audiologists, like you are supporting the main diagnosis. Like आप जा रहे हो कि खून की जांच करानी, who will do the खून की जांच? Pathologist. आपको एक्सरे या सीटी स्कैन कराना, who will do that? Radiologist. That are allied health professionals, right? But optometry are the primary health professionals. We are not allied. We are not supporting staff. We are mainstream clinicians, right? Because we are dealing the patient directly. We are dealing the patient directly, so that patient can get know about what actual diagnosis or management the patient is having. Okay. Now, anyone tell me what do you understand by optician, optometry and ophthalmologist? क्या इन तीनों का नाम सुना है आप लोगों ने? नाम सुना है? What is optician? Okay, and optometrist I told you. What do you mean by ophthalmologist? Right. So let me tell you very clearly here. Optometrists are the eye physicians. इसको हम कैसे समझ सकते हैं? Let me give you one example. अगर मुझे बुखार है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, so I will go to the physician or I will directly go to the surgeon. कि मेरा ऑपरेशन कर दो. Physician. Why? Why not surgeon? Because we don't know what has happened to us. On a similar basis, ophthalmologists are eye surgeons. Ophthalmologists are eye surgeons. Optometrists are the primary eye care professionals. They are eye physicians. In our domain, apart from surgery, we can do everything. We can do comprehensive eye examination. Contact lens आप लोग जानते हैं, that thin layer जो कि आँख में लगता है, that practices by optometrist, not an ophthalmologist, not an optician. Now, अगर आप कोई भी ऑप्टिकल शॉप में जाएंगे, वहाँ देखेंगे एक मशीन होती है, आप उस मशीन में चेहरा रखते हो, नंबर आता है, right? That particular machine, whoever are handling, they are technicians. You need to understand about this terminologies. What is the difference between technician and clinician? Technician are those who know how to operate the machine, and clinician are those who knows how to treat, diagnose and manage the case. Am I repeating the point? So optometrists are not technicians, not chashma sellers. Optometrists are the primary eye care professionals. Are you aware about optometry now? Yes, sir. Our main motto is to create an awareness in our Jharkhand region about optometry. Choosing and taking admissions further after 12, that is your decision. But this course has a huge demand with 100% placement record from last 2 years. With 6 to 8 lakh per annum of average package. Right? So if a college is producing 1,000 number of engineers, if you are refusing the job, 90% of the people are behind you to grab your job. But in optometry, whatever you will throw your salary expectation, company have to give you because of the lack of optometrists in the state, in the country, to reduce the blindness ratio of the country. तो ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जहाँ पे आप जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसको आप फिर से रोशनी देते हो, फिर से देख पाते हैं, आप एप्रन लगा के पेशेंट चेकअप करते हो. दैट इज क्रिएट अ ह्यूज जॉब सेटिस्फैक्शन विद अ नोबल प्रोफेशन. और ये आपको कैरियर के साथ, सैलरी स्केल के साथ एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी देगा. Am I clear? Yes, sir. Am I clear? Yes, sir. Thank you. Sir, is it possible that children those who have not opted science, but they can opt for this optometry course after 12? Unfortunately, the main eligibility criteria is science. Yes, I'm asking question on your behalf. This is the question which you should have asked. But the thing is, 12th they have to study science.
science for this. Yes. Either maths or biology. Science background must be there. Must be. Without biology also they can. Yes, the children without biology also can opt for this course. The moral of the story is this. Okay. सर ये तो हो गया आपका ये कोर्स जो है साइंस से रिलेटेड है. अदर देन साइंस कोई कोर्सेस है? ओके. नाउ लिसन वेरी अटेंटिवली ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स. ये जस्ट मैम ने कहा कि क्वेश्चन आपके भी हाथ में पूछ रही है. यू शुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन वेदर व्हाट आर द ऑप्शन. ठीक है, सैलरी क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, ऑप्टोमेट्री के बारे में आपको बेसिक नॉलेज हो गया है, राइट. तो हाउ मेनी कॉमर्स स्टूडेंट गुड नंबर कॉमर्स. Yes sir, 50% because 31 we have strength in science and as well as commerce. बहुत बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात करें. ठीक है, आपने कॉमर्स किया, क्या ऑब्जेक्टिव आपका करियर से, इस कॉमर्स सब्जेक्ट से आप करियर बनाना चाहते हैं तो कुछ तो सोचा होगा ना माइंड में. क्या है, एक दो बता सकते हैं? Commerce student, yes. You. What? Yes. What is the objective? Why you have opted for commerce? सीए बनना चाहते हैं. यू मेक मी To start up my own business. ओके, स्टार्ट अप माय ओन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, अदर स्टूडेंट नॉट येट डिसाइडेड. What about others? What about others? There are many commerce, 31 are there, and only 2 has told. One is entrepreneur and other one to become a CA. What about others? So you don't want to become anything. You don't have any target, right? Okay, so they don't have any target. Kindly guide them, sir. Okay. Enlighten them, sir. ओके, प्रॉब्लम्स नॉट ऑफ योर्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी केयरफुल. ये 10 मिनट का जो सेशन है आपके लाइफ में हो सकता है एक पॉइंट के अगर चेंजेस लाएगा तो मेरा और सर का आना यहाँ पर सक्सेस है मेरे समझ. क्लियर? जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ऐसा नहीं कि साइंस में और ऑप्शन नहीं है. और ऑप्शन है, बीटेक है, डिप्लोमा है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद में बीसीए है. देयर अदर ऑप्शन एज वेल. कॉमर्स में जो यहाँ से आप शुरू करेंगे तो 5 बड़े सेक्टर हैं. वो कौन से सेक्टर हैं जहाँ से आप यहाँ से जंप कर सकते हैं अल्टीमेटली करियर ऑब्जेक्टिव. आपने कहा सीए बनना है, ठीक है, मान तक. और आपने कहा कि मुझे बिजनेस करना है, ये भी ठीक है. इसके अलावा अगर मान लो किसी को जॉब करना है तो वो बीकॉम करने के बाद या बीबीए करने के बाद कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर वो अपना करियर देख सकते हैं. मैनेजमेंट देख सकते हैं, बैंकिंग देख सकते हैं, और एलएलबी देख सकते हैं. ठीक है, चलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा. 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. रतन टाटा ने, ठीक है, आर्किटेक्ट में बीटेक किया था, ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी से, और बाद में वो जाकर ही हैज बिकम द सक्सेसफुल बिजनेसमैन. मुकेश अंबानी ने मैकेनिकल में बीटेक किया, राइट, और दोनों सक्सेस आज के दिन में दोनों बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है. रतन टाटा को खैर बच ऑफ अभी बहुत मतलब एज हो गया है, लेकिन अभी जो नए स्टार्टअप हैं, चाहे ओयो को ले लें, जोमेटो को ले लें, या फिर आप ये चाय वाला को ले लें, आप उसको जब देखेंगे, मैन्युअली ऑब्जर्व करेंगे बिजनेस का मॉडल को, तो आप ये समझेंगे कि क्या ये सक्सेसफुल है. सक्सेसफुल है कहाँ से? अभी तो ये बिजनेस लॉस पे चल रहे हैं. आप अभी करंट में आप जाकर देखें, इस अभी सितंबर में हुआ है, अगस्त में जाकर आप देखेंगे, अगस्त के फर्स्ट अगस्त सॉरी जुलाई में अगर देखेंगे तो बिजनेस टाइम्स में आप सॉरी बिजनेस टुडे में 67% बिजनेस दे आर न्यू स्टार्टअप आर दे आर लूजिंग देयर प्रॉफिट. ठीक है, उस पर अगर इनसाइड में मैं जाऊँगा तो इट विल टेक अनदर 2 आवर्स उसके. ठीक है, तो मैं 2-3 चीज़ आपको बताता हूँ. एक सबसे बड़ा सेक्टर है जो बैंकिंग सेक्टर है, जो बीकॉम स्टूडेंट के लिए. बैंकिंग में हमारे पास 2 तरह के बैंक अकाउंट हैं, प्राइवेट है, गवर्नमेंट. इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस बहुत सारी कंपनी मार्केट में भी आई है जो आपके लिए जॉब के लिए इंतजार कर रही है. दूसरा बड़ा सेक्टर है, सबसे जो लक्जरी बोल सकते हैं, वो है आपका म्यूचुअल फंड. देयर आर सो मेनी फंड्स. टाटा कैपिटल है, रिलायंस म्यूचुअल फंड है, कोटक महिंद्रा फंड है. देयर आर सो मेनी. फंड का मतलब समझते हैं ये कंपनी कहाँ से आती है. जिस कंपनी को
बिजनेस करना होगा वो पब्लिक से पैसा लेती है और सटन टर्म्स एंड कंडीशन, और वो पैसा बिजनेस में अपने बिजनेस में लगाती है और इसको मैनेज करते हैं फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर। ये बहुत क्रिएटिव जॉब है। इसको करने के लिए आपको NCFM करना होगा और BCom के साथ साथ नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक सर्टिफिकेशन है जो ऑनलाइन कोर्स होता है। फंड कंपनी ये BSc कराती है, BSc बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और साथ में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कराती है। ये अगर साथ में आप BCom के साथ साथ करेंगे तो ये आप फंड हाउस में आपके ओपनिंग के रास्ते में, आपके जॉब के रास्ते में क्लियर है। इसमें किसी को डॉट बहुत डिटेल पे लिखा है, इसमें अलग-अलग पोर्टफोलियो हो सकते हैं, अलग-अलग जॉब हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए एंट्री हो, ये कंडीशन है, पहले समझ लीजिए। इसको आपको करना है अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना जॉब तलाश करने जाते हैं। उसी तरह शेयर मार्केट है, ब्रोकिंग हाउस भी करते हैं। कोई बता सकते हैं आपके CKP मार्केट में कोई भी ब्रोकिंग कंपनी है जो शेयर मार्केट से रिलेटेड आपने जो बता पाएंगे? शेयर मार्केट समझते हैं? Yes, sir. क्या कोई भी एक शेयर का नाम बता सकते हैं? रिलायंस BNB सर, रिलायंस और टाटा मोटर्स, HDFC कंपनी चलती है, जितनी बड़ी कंपनी चलती है वो सारी कंपनी का शेयर BSE और NSE लिस्टेड है। जितनी बड़ी कंपनी 500 कंपनीज है उसको हम लोग कहते हैं निफ्टी में लिस्टेड है। उसके बाद सेंसेक्स है जो पर डे फ्लक्चुएट करता है मार्केट में, अगर बिजनेस डाउन अगर कोई, और इसका एक्सटर्नल इफेक्ट होता है मार्केट में, शेयर मार्केट में, जैसे इकोनॉमिक इफेक्ट्स, शेयर पॉलिटिकल इफेक्ट्स, सोशल इफेक्ट्स, इसका सारा चीज मार्केट पे इफेक्ट्स हो। ठीक है, शेयर मार्केट बहुत अच्छा जॉब है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं है कि साइंस के स्टूडेंट नहीं जा सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर शेयर मार्केट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपको कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। इसके साथ साथ एक और सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर, वो इंश्योरेंस सेक्टर। जब हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? LIC इसलिए कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसके अलावा चूंकि हमने बचपन से हमारे दादाजी से ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी जिसका छोटे अमाउंट या बड़े अमाउंट का LIC नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा तो मुझे लगता है 50 ऐसी कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर में, जिसको मैं बोल सकता हूँ 10-15 कंपनी का नाम जिसका अपना भी इंश्योरेंस है, राइट। लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं LIC एक कंपनी है। मैं ये कहने के लिए यहाँ पर LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है, अरे वो हो राइट। इसकी तरह से 50 कंपनी है। वो कौन-कौन से इंश्योरेंस देखती है? लाइफ इंश्योरेंस के अलावा, लाइफ इंश्योरेंस के अलावा कौन सी? कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, बाइक, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है क्या?